A very good morning, dear students. Today we will start our new chapter, that is working with MS Paint. So students, as we have already learned in the previous class also, that MS Paint is a simple program for painting on the computer. MS Paint एक simple program है, okay? या फिर हम कह सकते हैं MS Paint एक application software है जिसके through हम painting करते हैं अपने computer में, okay? So there are some uses of this MS Paint software. So first one is we can draw and paint new pictures. हम draw कर सकते हैं, paint कर सकते हैं new pictures को, okay? Second is view and edit the scanned pictures. और हम MS Paint के through scan pictures को view भी कर सकते हैं और edit भी कर सकते हैं. And third one is paint your drawings and pictures. हम अपनी drawings को पेंट कर सकते हैं, ओके, और अपने पिक्चर्स को पेंट कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट अवर MS Paint. So students, there are some steps that we have to follow to start our MS Paint. Okay, so step first is click on the start button. So as we all know, this one is our start button. ये कौन सा बटन है हमारा? स्टार्ट बटन है. ओके, so we have to click on the start button. Now second step is click on all programs. Now third step is click on accessories. हमें किस में क्लिक करना है? Accessories में क्लिक करना है. So this one is our accessories option. Now step 4 is click on MS Paint. So हमें किस में क्लिक करना है? Click on Paint. Now our MS Paint window is opened. Okay, so students, in this window there are some tools from which we can draw our pictures or shapes. Okay, so first one is line tool. Okay, so from this line tool we can draw lines in any direction from top to bottom or from left to right. इस line टूल के थ्रू हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ सेकेंड टूल इज पेंसिल टूल. सो दिस टूल इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड पॉइंट्स व्हाइल ड्रॉइंग विद द पेंसिल टूल. पेंसिल टूल के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन ब्रश टूल. So this tool is used to draw anything like we draw on the paper. हम पेपर में कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ब्रश टूल के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो ब्रश टूल के पास डिफरेंट थिकनेस ऑप्शंस होते हैं. ओके, हियर यू कैन सी हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेस प्रेजेंट होते हैं. सो अगर हम इन ब्रशेस का यूज करेंगे सो इनसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं शेप्स. ओके, now fourth one is rectangle tool. So this one is our rectangle tool. So this tool is used to draw squares or rectangles of different sizes. हम rectangle tool से square बना सकते हैं और rectangles बना सकते हैं in different size के. Suppose I am using rectangle tool. मैंने rectangle tool का use किया. Okay, now next is oval tool. This tool is used to draw ovals or circles of different shapes. Okay, circle is absolutely round but an oval is egg shaped. So circle हमारा क्या होता है? Absolutely circle shape में होता है. Okay, round shape में होता है, but oval हमारा egg के shape में होता है. Okay, so suppose I have selected oval tool. मैंने oval tool select किया. Okay, this one is our oval tool. मैंने oval tool को select किया है तो यहाँ पे मैंने बनाया एक circle. Okay, so this is our round shaped circle and this is our oval shaped. Okay, ये क्या है हमारा oval shaped है जिसे हम कहते हैं एग की शेप में. ओके, नाउ राउंडेड रेक्टेंगल टूल.
सो दिस इज अवर राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ये क्या है हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। सो राउंडेड रेक्टेंगल टूल कैसे दिखाई देता है, कैसे शो होता है, लाइक दिस। सो राउंडेड रेक्टेंगल टूल और नॉर्मल रेक्टेंगल टूल में बस इतना डिफरेंस है कि इनके जो एजेस होते हैं, ओके, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, उनमें पॉइंट्स नहीं होते हैं, ओके। वो कैसे शेप में होते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं। इनके कॉर्नर्स कैसे होते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टूल इज पॉलीगन टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ क्लोज शेप with straight lines. So polygon tool, this is our polygon tool. polygon tool का क्या यूज होता है, हम सपोज एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम इससे क्या करते हैं, क्लोज्ड शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अब मैं कहीं भी अगर क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगी हमारी लाइन, ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पे हम पॉलीगन टूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक क्लोज शेप बना सकते हैं, ओके। सो आई हैव मेड दिस क्लोज्ड शेप फ्रॉम दी पॉलीगन टूल। मैंने पॉलीगन टूल के थ्रू क्या बनाया है, क्लोज्ड शेप बनाया है, ओके। सो हम कहीं पे भी अगर क्लिक करते हैं तो वो एक क्लोज्ड फिगर बनाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमें सबसे पहले सिर्फ एक सिंगल लाइन खींचनी है, उसके बाद हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी लाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कर्व टूल। सो दिस इज अवर कर्व टूल। ये क्या है, हमारा एक कर्व टूल है। सो हमने एक कर्व टूल बनाना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी की एंड से हम इसे ऐसे ड्रैग करेंगे, ओके। सो हमारी क्या बन जाएगी, कर्व लाइन बनेगी, ओके। सो दिस इज कॉल्ड कर्व्ड लाइन। सो दिस कर्व लाइन वी हैव ड्रॉन फ्रॉम द कर्व्ड टूल, ओके। नाउ नेक्स्ट टूल इज टेक्स्ट टूल। सो टेक्स्ट टूल हम बनाने के लिए हमें सपोज मैंने एक फिगर ड्रॉ करा सबसे पहले, ओके। सपोज दिस रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे क्या लिखना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, ओके। तो मैंने क्लिक किया टेक्स्ट टूल पे। सो दिस इज अवर टेक्स्ट टूल, ओके। ये हमारा टेक्स्ट टूल है। अब मैं इस टेक्स्ट टूल को लेके यहाँ पे क्लिक करूँगी, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स आया है, इस बॉक्स में हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था रेक्टेंगल, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल, ओके। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि ये शेप का नाम नेम किया है, रेक्टेंगल है, ओके। सो इन दिस MS Paint वी कैन ऑल्सो यूज दी टेक्स्ट, ओके। और इस टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना होगा, सपोज मैंने टाइम्स न्यू रोमन में रखा, ओके। तो मैं यहाँ पे टाइप करेंगे टाइम्स न्यू रोमन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो जाएगा, ओके। मैंने इसे सेलेक्ट किया, देन टाइम्स न्यू रोमन। तो मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया है, उसका फॉन्ट चेंज कर दिया है हमने टाइम्स न्यू रोमन में, ओके। नाउ द नेक्स्ट टूल इज इरेजर टूल। सो इरेजर टूल का हम यूज करते हैं किसी भी चीज को रब करने के लिए, ओके। नाउ द लास्ट वन इज सेलेक्ट टूल। सो दिस टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट द ड्राइंग। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द पेंट विंडो। सो सेलेक्ट टूल। सो हियर दिस वन इज अवर इरेजर टूल, ओके। ये कौन सा टूल है हमारा, इरेजर टूल है, और ये है हमारा सेलेक्ट टूल, ओके। सो अगर हमें किसी भी इमेज को सेलेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, ओके। और इरेजर टूल को हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हमें कुछ रब करना होता है। तो सपोज मैंने इरेजर टूल का सेलेक्ट करा है, ओके, और मैंने एक सेलेक्ट ऑप्शन सपोज मैंने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट को हम
यूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए भी। ओके, मैंने ये पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब मैं क्लिक करूँगी कीबोर्ड के थ्रू डिलीट ऑप्शन का। ओके, सो दिस इज अवर डिलीट ऑप्शन, मैंने कर दिया डिलीट। नाउ दैट शेप वॉज डिलीटेड, अब वो शेप क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। ओके, तो हम सेलेक्ट ऑप्शन का किस लिए यूज़ कर सकते हैं, डिलीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इरेजर के थ्रू भी हम इरेज कर सकते हैं लाइक दिस। Okay, so dear students, that's all for today. Further topics of this chapter we will discuss in the next class. So today you have to do one question answers in your notebook. So first of all you have to write down today's date. Okay, then write the chapter's name, working with MS Paint. Answer the following questions. Question number 1, what is the use of paint program? प्रोग्राम, पेंट प्रोग्राम का क्या यूज है? ओके, सो द यूजेस ऑफ पेंट प्रोग्राम आर, फर्स्ट वन इज ड्रॉ एंड पेंट न्यू पिक्चर्स, सेकेंड व्यू एंड एडिट द स्कैन पिक्चर्स, थर्ड वन इज पेंट अवर ड्रॉइंग्स एंड पिक्चर्स. ओके, so dear students, today you have to do only one question answer in your notebook, and further topics of this chapter we will discuss in the next class. Thank you. Have a good day.